take your class at all. मैम आज अगर ऐसी होगी तो फिर क्या गारंटी कल नहीं होगा फिर ऐसा प्रॉब्लम? किस तरह का प्रॉब्लम भाई? ये क्या आप लोग म्यूट कर रहे हैं, आप म्यूट नहीं रह पा रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम आप सबको म्यूट मैम उस कर पे दो। क्लास लो ना मैम, वेबएक्स पे, उस पे ईमेल आईडी भी तो लगती है। यहाँ तो डेली ऐसे ही होगा, फिर डिस्टरबेंस ही होगा। और क्लास लेती हूँ उसमें तो नहीं होता है, ये तो सीएसबी स्पेशल है। तो आप लोग जानो। मैं क्लास की जगह म्यूट ही करती रहती हूँ फिर, और क्या? मैम यस प्रिया, मैम मेरे नाम से कोई आ रहा है और गाने बजा रहा है। आपकी क्लास होगी नहीं, मैं रिपोर्ट कर देती हूँ अरुण सर को। आई डोंट नो कौन किसके नाम से आ रहा है। तो मैम जो नहीं बजा रहे उनकी क्या गलती है? मैम सबको म्यूट कर दो ना मैम। ऑप्शन हटा दो आप। अनम्यूट का ऑप्शन ही हटा दो। मैम रीनेम करने का ऑप्शन हटा दो डाउट इसमें से। रहेगा तो फिर कैसे होगा यार? मैम जो रीनेम करने का ऑप्शन है वो हटा दो आप इसमें से। हैंड तो रेज कोई नाम करके बदल नहीं बोल पाएगा। देंगे। Okay, so I'll be sharing my slides with you now. We'll begin with a new chapter, Harmony in the Self. Okay, so today we start with the new chapter, that is Harmony in the Self. So let me share my screen with you.
Okay. So harmony in the human being means कि हमारे अंदर as a human being what are the two categories which are there in us and how they coexist with each other. किस चीज में हार्मनी चाहिए जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर देयर, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन अस. सो ह्यूमन बॉडी इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द मटेरियल बॉडी. एक तो आई है हमारे अंदर और दूसरा हमारा जो पार्ट है दैट इज नोन एज द बॉडी. वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी. दोनों की जरूरतें समझनी है. देयर आर वेरियस एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन ह्यूमन बीइंग and body is acting as an instrument of I. Now just read this slide very carefully and understand that how are we coexisting. Okay, now the next part. तो आप ये पहले इस बात को समझिए, why is it said that human body is a coexistence of I and material body? Because we are existing in two parts, that is one I and the other is the body. And we need to understand कि I की needs अलग होती हैं, body की needs अलग होती हैं. Body केवल instrument है I का. Now look at this picture. It will help you in understanding that human body or human being is more than just a body. Human being जो है, human being is the coexistence of I as well as the body. I जो है वो हमें बताता है that yes we are alive. So I is जीवन. There is a continuous exchange of information between the two. दोनों के बीच में continuously information exchange होता है between I and body. Our body will act according to the suggestions that are given by our जीवन. Body हमारी जो I जैसे हमको suggestions देगा उसके according the body will be doing. So body is acting according to the suggestions of the जीवन. So this figure you can see here is indicating that human being is divided into two parts. Number one, the physical body, and number two, aliveness or जीवन or I or the self. इसमें divided है ये. All the human feelings, that is happiness, sorrow, any kind of excitement, any kind of pain, any kind of sadness, ये सब कौन feel करता है? They are experienced by I and not by the body. Now just read it. Why is it said that we are a coexistence of I and body? Because this is the reason. क्योंकि हम coexist कर रहे हैं I और body दोनों में और continuous exchange हो रहा है दोनों में. Please read it. Please see this figure. Is it clear? Everybody please read it. Okay, now we'll move on to the next slide. Now look at this table. It is very, very important. Now there are different needs which self has and there are various other needs which the body has. And we need to understand the difference between these needs of the self and the needs of the body. अगर needs की बात करें तो I requires trust, I requires respect. Okay? Body को क्या चाहिए?
Body needs food, clothing, shelter, all the things that are necessary for the body. Material है सब. आई को चाहिए हैप्पीनेस. बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी या फिर सारी सुविधाएं चाहिए बॉडी को. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स ऑफ आई एंड बॉडी. अगर टाइम के टर्म्स में बात करें तो आई की जरूरतें कैसी होती हैं? कंटिन्यूअस इन नेचर होती हैं. बॉडी की जरूरतें टेम्पररी इन नेचर होती हैं. दैट इज आई द नीड्स आर कंटिन्यूअस, फॉर बॉडी द नीड्स आर टेम्पररी. Okay. If I talk about the needs of I in terms of quantity, पे कितना चाहिए कोई चीज, तो I की जो जरूरतें होती हैं उसकी क्वालिटी देखी जाती है, not quantity. If you are talking about happiness, it should be real happiness. If you are talking about any kind of feeling, affection, care, कोई भी चीज ऐसी है तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए. रिस्पेक्ट है तो वाकई में आप रिस्पेक्ट को जज कर पाएंगे, हाँ भाई सही में ये पर्सन रिस्पेक्ट करता है. उसकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती है. हम ये नहीं कह सकते 1 रिस्पेक्ट, 2 रिस्पेक्ट, 3 रिस्पेक्ट. हाँ, लेकिन बॉडी की जरूरतें क्वांटिटेटिव होती हैं, उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, चाहे हम ये बात समझे नहीं समझे. लेकिन बॉडी को जितना खाना चाहिए, अगर इफ अ बॉडी इज रिक्वायर्स 2 चपातीस, 3, 4 जितना चपातीस, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं. सो बॉडी की जरूरत जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, काउंटेबल होती है, और उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी भी होती है. देन हाउ टू फुलफिल दिस नीड्स, ये जो जरूरतें हैं किस कैसे पूरी होती हैं? आई की जरूरतें हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट फीलिंग से पूरी की जाती हैं, और बॉडी की जरूरतें उसको सारी फिजिकल चीजें देके पूरी कर सकते हैं. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो भी चाहिए बॉडी को, वो दे करके आप उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं. So this is about the needs of eye and body. Hello. Yes. What's your name? Okay. So now let's move further. In terms of activity, अगर एक्टिविटी की बात करें तो आई के अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है? आई के अंदर चल रहा है डिजायरिंग, थिंकिंग, ओके, इस तरह की जितनी भी इमेजिनिंग, सिलेक्टिंग, इस तरह की चीजें सब कहाँ चल रही हैं? दीज आर गोइंग ऑन इन आवर आई. आई करता है ये सब काम, सोचने का, किसी चीज को इच्छा करने का काम, ये सब कौन कर रहा है? आई कर रहा है. और ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब चीजें कहाँ चल रही हैं? दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन द बॉडी. Now, if you enter late, I should not allow you. But there are people who tell me, ma'am, network issues हैं, हम बार-बार in and out हो रहे हैं. But this is not right. Please be there on time. Go through this table. It's very important. आपने इस टेबल को ठीक से नहीं समझा तो आपको मैं जो समझा रही हूँ, you'll not understand this thing. Please go through this table.
वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, स्क्रीन पे लिख दिया। क्लास इज क्रिएटिंग टू मच ऑफ न्यूसेंस। Okay, so if I talk about the activities, आई की एक्टिविटी मैंने आपको बताया, डिजायरिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ऑल दीज आई की डिजायरिंग थिंकिंग है। बॉडी की ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट एंड डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर मटेरियल थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द बॉडी। आई हैज द एक्टिविटी ऑफ नोइंग, अज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। आई के अंदर कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज चलती हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो आई के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है? जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, पूरा करना कहते हैं फुलफिल करने को। ओके, सो नोइंग मैंने बताया, आई की एक्टिविटी है नोइंग, अज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी केवल रिकग्नाइज और फुलफिल करती है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो आई, क्योंकि ये जानता और मानता भी है और साथ में रिकग्नाइज और फुलफिल भी ये साथ में करता है, दैट मीन्स आई के पास कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी। ओके, सो नोइंग, अज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, और बॉडी करती है केवल रिकग्नाइज, फुलफिल। तो इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। आई जो होता है उसको पता होता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। सपोज देर इज अ डॉक्टर एंड दैट डॉक्टर गिव्स यू एन इंजेक्शन। तो आप जानते हो कि ये पर्सन डॉक्टर है, तो ये मुझे इंजेक्शन देगा, तो कुछ ना कुछ मेडिकेशन देगा जिससे मेरी तकलीफ या जो भी मुझे प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। सो वी डोंट रिटेलिएट। बॉडी रिकग्नाइजेस, वो सुई चुभेगी आपकी और बॉडी अपनी जरूरत को, उसकी जो बीमारी है उसकी दवाई ले लेगी और फुलफिल कर लेगी जरूरत को।
लेकिन अगर खाली बॉडी की बात करें तो बॉडी तो केवल सुई को फील करके उससे मेडिसिन लेके एब्जॉर्ब करती है. बॉडी डज नॉट नो और अज्यूम एनीथिंग. कोई अगर XYZ पर्सन और आकर के आपकी बॉडी के ऊपर हार्म करता है तो बॉडी तुरंत रिटेलिएट करती है, क्योंकि बॉडी को पेन होता है उससे. लेकिन क्योंकि आई को पता है ये डॉक्टर है, दिस ही और शी विल गिव मी मेडिसिन थ्रू द नीडल, वी विल नॉट रिटेलिएट. सो आई हैज टू एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट इज नोइंग एंड अज्यूमिंग. आई जानता भी है, मानता भी है चीजों को, लेकिन बॉडी केवल रिकग्नाइज और फुलफिल करती है. अगर टाइप की बात करें तो आई की जरूरतें कैसी होती हैं? कॉन्शियस इन नेचर होती हैं, यानी नॉन मेटीरियल होती हैं. आई की जरूरतें कॉन्शियस होता है, आई सब कुछ बताता है कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है. बॉडी की जरूरतें केवल फिजिको केमिकल होती हैं, यानी बॉडी के अंदर सारी मटेरियलिस्टिक जो भी एक्टिविटीज हैं चल रही हैं. बॉडी ने फूड से न्यूट्रिशन लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उससे उसको नरिशमेंट मिला, तो ये सारी फिजिको केमिकल एक्टिविटी हैं, फिजिकल चीजों से ये पूरी हो रही हैं. So this is a very important table you need to understand, जिससे आप बता पाओ how is body, how is a human being coexisting and what is the difference between the needs of self and the needs of the body. Till you don't understand this thing, you will not be able to understand anything further. And I'll be unmuting you and listening to your problems, लेकिन आपकी class का behavior is so poor that I don't want to do it. Your class is creating too much of nuisance. ये ऐसे बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना is useless, who don't understand the meaning of values. आज आप देख रहे हो ना कि दुनिया में there are people who are working for their benefit in this time of such a big pandemic. इतना बड़ा पैंडेमिक है, इसमें लोग अपने बेनिफिट के लिए जो मेडिसिन हैं इतनी एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, मेडिसिन की होर्डिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, बिकॉज दे डोंट हैव वैल्यूज. संस्कार नहीं है इस टाइम पे. देयर इज सच अ बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव टू टेक दीज क्लासेस ऑनलाइन एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वे ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू यू, बट स्टिल these are the values that you are learning that we should disturb. जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में आप तक एजुकेशन पहुंच पा रही है, उनको भी डिस्टर्ब कर दो, उनको भी खत्म कर दो, जिससे कि हम अपने घर में बंद होकर के बैठ जाते हैं without anything to do. This is what students want, and these are the sanskars that you have. So what should we do with such a class who doesn't understand anything, who has such nuisance creating characters, who have no values, like the people who are hoarding oxygen and who are hoarding medicines and they are earning money in this time of pandemic. Human feelings nahi hai, human feelings yahan bhi hurt ho rahi hain aap agar class ko is tarah se disturb karte ho to. Enjoyment, kitna enjoyment hai, jo limited resources se padhai pahunch rahi hai na aap tak, usko bhi khatam kar do. kitni badhiya baat hai. मैं अनम्यूट करती हूँ, देखती हूँ. एक स्लाइड और कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. Now we need to understand the needs of the self and the needs of the body. Physical facility आपके पास अगर है, it ensures the fulfillment of the needs of the body. But ये बॉडी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है. ठीक है, ये आई की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है. अगर हमारे पास मान लो फिजिकल फैसिलिटी है तो बॉडी की जरूरत तो पूरी हो जाएगी. ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छे क्लोथ्स हैं, है ना, बॉडी की जरूरत उनसे पूरी हो रही है. अच्छे बुरे जो भी है, क्लोथ्स का पर्पस इज टू कवर द बॉडी. बट हम क्या करने लगते हैं, हम इक्वेट करते हैं. हम सोचते हैं कि अगर आज हमारे पास अच्छे कपड़े, इट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट. वो चाहिए आई को, तो हम सोचते हैं क्लोथ्स इज इक्वल टू रिस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय आई. तो जब हम ये करने लग जाते हैं कि हम आई और बॉडी की जरूरतों को अलग अलग ना करके हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा मोबाइल होगा तो हमारे को रिस्पेक्ट मिलेगी, तो दैट इज नॉट करेक्ट. अब आप ये देखिए, आई को चाहिए हैप्पीनेस, बॉडी को चाहिए फिजिकल फैसिलिटी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, हमने या
पेरेंट्स हैं, मान लीजिए हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, हमने सोचा उनको सारी फिजिकल फैसिलिटी दे देते हैं, पर हम उनको टाइम नहीं देते या रिस्पेक्ट नहीं देते, तो क्या वो हैप्पी होंगे? वो हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उनको सारी फिजिकल फैसिलिटी दे दी पर हमने हमने उनको टाइम नहीं दिया, हमने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो गिविंग फिजिकल फैसिलिटी डज नॉट मेक आई हैप्पी। वो तो बॉडी की जरूरत थी, उनको कंफर्ट मिल गया, दैट्स इट, बट इट विल नॉट गिव देम हैप्पीनेस इफ द फीलिंग्स आर नॉट गिवन टू देम। सो आई को चाहिए हैप्पीनेस, आई को चाहिए रियलिस्टिक फीलिंग्स, और बॉडी को कंफर्ट चाहिए, बॉडी को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं चाहिए। So these cannot replace each other, because what I needs is what I needs and what body requires is the requirement of the body. So there's a difference between both of them, and we need to understand this difference. Analyze this table. Again I am saying, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। ये देखिए, ये आई जो ह्यूमन बीइंग है वो आई और बॉडी में डिवाइडेड है। बॉडी की जरूरतें अलग हैं, ह्यूमन बीइंग की जरूरतें एज आई अलग होती हैं, क्योंकि आई जीवन है, आई के अंदर सारी अलाइवनेस है। ये नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी हैं, और ये नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी को हमें समझना है। अब इसको और देख लेते हैं। सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, इट इज लाइक अ स्टेट ऑफ माइंड। सुविधा का मतलब होता है फिजिकल कंफर्ट या फिजिकल फैसिलिटी, जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है। लेकिन आज लोग सुख और सुविधा के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। वो क्या करते हैं, वो फिजिकल फैसिलिटी के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा सारा सुख तो फिजिकल फैसिलिटी से हमें मिल रहा है। बट इट मीन्स कि मोर सुविधा, जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतने खुश होंगे। लोगों के पास कितनी सुविधा होती है तो भी वो खुश नहीं होते, क्योंकि उनके घर के लोग टाइम ही नहीं देते उनको, या उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देते। बट सो इट इज अ वेरी कंप्लीटली, इट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग नोशन, ये बिल्कुल गलत है। सो मटेरियल पोजेशंस मे नॉट ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, बिकॉज मटेरियल चीजें तो चाहिए बॉडी को, हैप्पीनेस चाहिए आई को, सुख चाहिए। सो ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज इज नॉट राइट, इट इज अगेंस्ट नेचर। नेचर में से आप रिसोर्सेज खत्म कर रहे हो, लोगों के अगेंस्ट है, आप आगे की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज खत्म करते जा रहे हो, आगे थ्रेट है ह्यूमन सर्वाइवल पे। If you keep on utilizing resources, if you keep on accumulating physical facilities, which is not what I want, you will never be able to really be happy. So this is Sukh versus Suvidha, which you need to understand. So once again, all these slides I'm showing you, have a look at them, and then I'll give you time for queries. ठीक है? Yes, students. Now, do you have any queries? मैम हाँ बोलो। मैम जो अभी लेट ज्वाइन हो रहा था उसका नाम बताना एक बार, कौन था? What's your name? मैम माय नेम इज पंकज कुमावत। हाँ बोलो। मैम जो अभी लेट ज्वाइन हो रहा था, आपने बोला ना कि हम लेट एंट्री नहीं देंगे, तो जो लेट ज्वाइन हो रहा था उसका नाम बताना एक बार, कौन है? ये क्या क्योंकि मैम वो होगा? जो मैम लेट ज्वाइन करते हैं ना, वही मैम मतलब दूसरों के नाम से पहले एड होके अपने नाम से फिर बाद में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो एक बार नाम बताना वो कौन है? मैंने रीनेम का ऑप्शन हटा दिया है पंकज। ओके मैम। शालिनी मैम, एक कुणाल के नेम, सिंगल कुणाल के नेम से, वो क्या इस क्लास का स्टूडेंट नहीं था? अभी जैसे आपने अनम्यूट किया है सबको, तो वो स्टूडेंट लेफ्ट कर चुका है। अच्छा हाँ, आई थिंक वो ही क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम। मैं अपनी क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ये लोग पढ़ाने ही नहीं दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हाँ, वही हम बार बार से, ये कुणाल गोयल, कुणाल गुप्ता, ये तो इसी क्लास की हैं। तो क्लास में है, सिंगल अच्छा। कुणाल की एंट्री थी, वो स्टूडेंट अपनी क्लास का नहीं है मैम, सीएसबी का नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ। है। अब मैंने रीनेम का ऑप्शन हटा दिया था। अब ये दो पीयूष शर्मा और ये इसमें नफीस
एडमिट कर लेती हूँ, फिर अब तो क्लास ही खत्म हो रही है, अटेंडेंस ले लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में एडमिट होते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, हम भी ऑप्शन खत्म कर देंगे बीच में एडमिट करने का। अब तो इनकी मैम प्रॉब्लम एक प्रिया तिवारी नाम की थी मैम, उसको आपने एग्जिट कर दिया था मैम। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, जब क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही है, आप क्लास ही नहीं ले पा रहे हो। आगे देखते मैम हैं। काम करते हैं, तो एक बार ये बोल देते हैं, एक बार अपना नेम और ये जो भी डीपी वगैरह लगाना चाहे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि यही कोऑपरेट करेंगे अपन लोगों को, तो इनको बोल देते हैं जो भी अपनी डीपी है वो लगा ले, जैसे लोकेश ने लगा रखी है अभी, है ना। हाँ। तो इस तरीके से लगा लेंगे, स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी क्लास का है और ये नहीं है। दूसरा, जो इनके आरटीयू रोल नंबर है उनसे एंट्री करें। अगर कोई भी स्टूडेंट बिना आरटीयू रोल नंबर के एंट्री कर रहा है तो उसको हम एंट्री नहीं देंगे। आपको अपना नाम लिखना है, ऑल स्टूडेंट सुन लीजिए, नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आप में से किसी ने इसमें किसी ने भी पूरा आरटीयू रोल नंबर के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं किया हुआ, आरटीयू रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करना है। आप आरटीयू रोल नंबर भी डालिए अपने नाम के आगे, ठीक है, बिकॉज वेरी सून द क्लास इज गोइंग टू एंड, है ना मीनू। तो हाँ मैम इनको बता देते हैं, मैं और नेक्स्ट अभी क्लास भी टाइप कर देंगे, नहीं तो ग्रुप पे टाइप कर देंगे। जी मैम जी।